Namaste everyone. Today I am going to conduct Twin Heart meditation on my YouTube channel with expectation that viewers will listen carefully the commentary of Twin Heart meditation and will follow and will do practice daily to purify yourself. Purification means clean your negative thoughts, negative emotions and negative karmic account. This is an ongoing process and gradually your cup will be full of positive energy and confidence. You will be ready to bless yourself, your family and friends and your city, your country and the entire earth. This meditation is a preparatory level like when we have to go out or in any party or in any occasion. According to that standard, we choose our dressing and other things. Similarly, when we want to qualify any exam, we prepare best for that. Similarly, on top of head there is a crown chakra, that is divine heart, and in middle of chest there is a heart chakra, that is our emotional heart. Heart is a symbol of love. Divine love is for everyone. As parents fulfill desire of their children, similarly divine father and divine mother also fulfill our desire. For that we take birth again and again and improve or evolve ourselves. We all are the children of God. We need to develop or practice virtues in our life so our emotional heart becomes or near to be divine heart. Curious person can go ahead with various level of pranic healing courses and can learn various techniques of meditation. Knowledge is most important part of life. So read various books and learn techniques and experience and become master of your life or command on yourself. If you have enough time, then do various things to remember God. If you have not enough time, then you know better how to manage time. So whenever you want to connect to supreme power, say or repeat, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपके दिव्य दिशा निर्देश, सहायता तथा ज्ञान के लिए हम आपका पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं. तथास्तु तथास्तु तथास्तु. I am reading few lines from book At the Feet of the Master. In all the world, there are no only two kinds of people, those who know and those who don't know, and this knowledge is the thing which matters. What religion a man holds, to what race he belongs, these things are not important. The really important thing is this knowledge, the knowledge of God's plan for men. For God has a plan, and that plan is evolution. Thank you very much. नमस्कार मित्रों, ट्विन हार्ट मेडिटेशन प्रारंभ करने से पहले हम लोग कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं. तो शुरुआत करते हैं आई रोटेशन से. और इसी तरह से 12 बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करें. इसके बाद गर्दन को आगे पीछे करेंगे, वो भी 12 बार. इसके बाद गर्दन साइड रेस, ये भी 12 बार. इसके बाद करेंगे अपर बॉडी प्रेस.
बात करते हैं हिप रोटेशन। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी सभी को आप करते वक्त 12 तक काउंट। इसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड। बार बार करना है और इनहेल करते हुए पीछे जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। इसके बाद करेंगे एल्बोज एंड आर्म फ्लिक। खाली हाथ में लेते हुए इसके बाद 50 टाइम्स हम लोग सेमी स्क्वाट करेंगे। इसको मैं इस पोजीशन में दिखाता हूँ। अब हम करेंगे नी फ्लिप्स, यानी कि घुटनों को सरके। ये भी बात है। हम लोग 12 बार दोनों ही घूमने देंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे एंकल कर्ल। इसके लिए आप चाहें तो सहारा भी ले सकते हैं। तो आप लोग बैठ के भी कर सकते हैं। यही सारे एक्सरसाइज हमको ट्विन हार्ट मेडिटेशन
चक्रास में एक्यूमुलेट हो गई है वो पूरे शरीर में फैल जाए, उसके लिए हम लोग 2-3 एडिशनल एक्सरसाइजेज और भी करते हैं। उनमें से ये एक है लिवर प्लेस को थपथपाना। और किडनी चक्रा में भी पीछे के स्थान में किडनी चक्रा होती है, इसको थपथपाना। पूरे शरीर के मसल्स को एक्सरसाइज करके रिलैक्स करना। नमस्कार। इस द्वे हृदय ध्यान में आपका स्वागत है। इस ध्यान का आप उचित रूप से अभ्यास करके लाभ पा सके, इसके लिए आवश्यक है कि आप निर्देशित शारीरिक व्यायाम पहले कर ले। ये आपके स्थूल व सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। यदि आपने व्यायाम नहीं किया है तो कृपया अपना प्लेयर यही बंद करें और निर्देशित व्यायाम करें। यदि आप पहले ही शारीरिक व्यायाम कर चुके हैं तो आगे बढ़िए। अब आप ग्रहणशील होकर चाहे कुर्सी पर बैठे या पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायी मुद्रा में बैठे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। हथेलियों को ग्रहण करने के मुद्रा में गोद में ऊपर की तरफ खुला हुआ रखें तथा पैर सीधे जमीन पर रखें। यदि आप कुर्सी पे बैठे हैं तो सहारा न ले। आंख बंद करें। जीभ की नोक को तालू से लगाएं ताकि ऊर्जा का प्रवाह शरीर में बेहतर हो सके। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़े। अपने मन को स्थिर करें और मन ही मन इस प्रार्थना को दोहराए। हे परमपिता, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है आपके दिव्य आशीर्वाद के लिए, सुरक्षा के लिए, दिशा निर्देश के लिए, सहायता तथा ज्ञान के लिए। हम आपका पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। गहरी सांस लेना जारी रखें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दे। इस प्रक्रिया को सर से प्रारंभ करें। सर से नीचे ललाट की ओर, आंखों से होते हुए गाल व पूरा चेहरा, गर्दन से होते हुए कंधों पर, बाहों पर, सीने पर, पेट पर से होते हुए यह ढीलापन कंधों से पीछे, पूरी रीढ़ की हड्डी व पीठ से होता हुआ जांघों पर, घुटनों पर, पैरों व पंजों तक आप अपने को एकदम ढीला करके आरामदायक स्थिति में ले आए हैं और अपने आप को शीतल व शांत महसूस कर रहे हैं। अब आप ताजी एवं नव जीवनदायक, स्फूर्तिदायक ऊर्जा सांस द्वारा अंदर ले और दूषित व अनुचित ऊर्जा सांस द्वारा बाहर निकाले। अच्छे स्वास्थ्यदायी ऊर्जा सांस द्वारा अंदर ले और जीवन की दर्द एवं असुविधादायी ऊर्जा को सांस द्वारा बाहर निकाले। आराम एवं शांतिदायक ऊर्जा सांस द्वारा अंदर ले तथा तनाव, दबाव एवं थकान देने वाली ऊर्जा बाहर निकाले। प्रेम व शांतिदायक ऊर्जा सांस द्वारा अंदर ले तथा घृणा, क्रोध को सांस द्वारा बाहर निकाल ले।
चैन व आत्मविश्वासदायक ऊर्जा सांस द्वारा अंदर ले तथा डर व चिंतादायक ऊर्जा सांस द्वारा बाहर निकाल ले। प्रसन्नतादायक ऊर्जा सांस द्वारा अंदर ले, दुख व अवसाद देने वाली ऊर्जा सांस द्वारा बाहर निकाल ले। दया एवं करुणा प्रदायक ऊर्जा सांस द्वारा अंदर ले, क्रोध एवं चिड़चिड़ापनदायक ऊर्जा सांस द्वारा बाहर निकाल ले। सकारात्मक व रचनात्मक विचार सांस द्वारा अंदर ले, नकारात्मक व कष्टदायक विचार सांस द्वारा बाहर निकाल ले। इस समय आप आत्मावलोकन के क्रम से गुजर रहे हैं। सबसे पहले आप दया एवं परोपकार के गुण के बारे में सोचें। याद करें कि कभी आपने किसी को शारीरिक चोट तो नहीं पहुंचाई? क्या आपने किसी को शब्दों या भावनात्मक प्रतिक्रिया द्वारा चोट पहुंचाई है? क्या आप निरंतर दूसरों के लिए नकारात्मक विचारों में मजा ले रहे हैं? यदि हां, तो उन सभी से मन ही मन क्षमा मांगिए जिन सब को आपने अपने विचार, वाणी या अपने व्यवहार से दुख दिया है और अभी भी दे रहे हैं। निश्चय करिए कि आज आप सभी के लिए अपने विचार, वचन एवं व्यवहार में दया एवं प्रेम के गुण का अभ्यास करेंगे। उसी निश्चय के अंश की तरह साथ में कल्पना करिए कि जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, आप उन सभी को क्षमा कर रहे हैं तथा उनके कल्याण के लिए उन्हें आशीर्वाद दे। और जिन्हें आपने दुख पहुंचाया है, उनसे क्षमा पाते हुए भी कल्पना करें, महसूस करें कि आपको माफ कर दिया गया है। याद करें कि आपने किसी से ऐसा कुछ लिया है जो आपका नहीं है, भौतिक रूप में या भावनात्मक रूप, चाहे वो किसी की प्रतिष्ठा हो, यश हो या उसके विचार हो, जो आपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए चुराया है। क्या आपने किसी का प्रेम चुराया है जो दूसरे के हिस्से का था? यदि हो तो मन ही मन क्षमा मांगिए और निश्चय करिए कि आज से आप वो सब किसी से नहीं लेंगे जो आपका नहीं है। प्रण कीजिए कि आज से आप सभी प्राणियों के लिए उदार रहेंगे और जब भी मदद की आवश्यकता होगी आगे आएंगे। याद करें कि क्या आप अपनी वाणी या कार्य से लोगों को धोखा दे रहे हैं या भ्रमित कर रहे हैं? क्या आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं वह होने का जो आप सचमुच में नहीं हैं? क्या आप अपने फायदे के लिए लोगों से सच छुपा रहे हैं? निश्चय करिए कि आज से आप मन, वचन व कर्म से स्वयं व दूसरों के लिए ईमानदार रहेंगे। सच्चे व ईमानदार जीवन के अंश के रूप में आप अपने जीवन के वो रहस्य याद करें जो आप में अपराध की भावना पैदा करते हैं। अपने आप को इस बोझ से मुक्त करें और संबंधित व्यक्तियों से मन ही मन सब कुछ कहें और माफी मांगें। अपने
वह दूसरों के लिए ईमानदार होने से जो शांति मिल रही है उसे अनुभव करें। अब आप सारी दुनिया और मानवता को प्रेम व दया के साथ आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। हृदय चक्र को क्रियाशील करने के लिए उसे बाएं हाथ से छुए और कुछ क्षण के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने संपूर्ण जीवन का सबसे सुखद क्षण या घटना को याद करें जिससे आपको प्रेम, दया, शांति या आनंद का अनुभव हुआ हो, या जब आपने दूसरों की सेवा की हो, या आपने अपना सुख किसी मित्र के साथ बांटा हो, या आपने अपने को ईश्वर के बहुत करीब महसूस किया हो। अब आप दया की भावना संपूर्ण पृथ्वी को बांटने जा रहे हैं। अपने सामने छोटी गेंद के आकार में पृथ्वी की कल्पना करें। कल्पना करें कि गुलाबी प्रकाश आपके हृदय चक्र से निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से ढक रहा है और उसे प्रेम व करुणा से सराबोर कर रहा है। मुस्कुराते हुए पृथ्वी की ओर देखें और मन ही मन संत फ्रांसिस ऑफ असिसी के प्रार्थना को दोहराए। हे ईश्वर, मुझे अपने शांति का माध्यम बनाएं। अपने हृदय चक्र से पृथ्वी को दिव्य शांति का आशीर्वाद दे। जहां भी घृणा हो, मैं प्रेम का बीज बोऊं। कल्पना करें कि आपके हृदय चक्र से प्रेम युक्त गुलाबी प्रकाश निकलकर पृथ्वी को सराबोर कर रहा है। जहां कहीं भी चोट पहुंची हो, क्षमादान हो। पृथ्वी पर सभी लोगों को क्षमा का आशीर्वाद दे। जहां कहीं भी शक हो, विश्वास फैले। जहां कहीं भी निराशा हो, आशा का संचार हो। संपूर्ण जगत की भलाई के लिए सभी जरूरतमंद लोगों को उम्मीद का आशीष दे। जहां कहीं भी अंधेरा हो, प्रकाश फैले। पृथ्वी को प्रकाश का आशीर्वाद दे। जहां कहीं भी दुख हो, आनंद फैले। पृथ्वी को अति आनंद से आशीर्वाद दे। और कल्पना करें कि जिन लोगों से आप रोजाना मिलते हैं अत्यंत आनंद के साथ मुस्कुरा रहे हैं। हे परमपिता, हमें शक्ति प्रदान करें कि हम अपने लिए सांत्वना पाने के बजाय दूसरों को सांत्वना दें। हम दूसरों से प्रेम व आदर पाने के बजाय उन्हें प्रेम व आदर दें, क्योंकि यह सच है कि पाने के लिए देना जरूरी है। देकर ही वह पाया जा सकता है। क्षमा देकर ही हम क्षमा पाने योग्य बन सकते हैं और मरकर ही हम अनंत जीवन पा सकते हैं। इस बार ब्रह्म चक्र को दबाएं और उस पर ध्यान केंद्रित करें। याद करें वो लक्ष्य अपने जीवन के जिससे आप अपना जीवन दूसरों के सेवा में लगाना चाहते हैं। जो आपके जीवन को दूसरों की सेवा में लगाने के लिए है, जो दूसरों से अच्छा संबंध बनाने के लिए है, जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए हैं और पृथ्वी पे भाईचारे की भावना
फैलाने के लिए हैं। इन विचारों के द्वारा अपने ब्रह्म चक्र को क्रियाशील बनाएं। अब कल्पना करें कि ब्रह्म चक्र से चमकीला श्वेत प्रकाश पृथ्वी पर जा रहा है और संपूर्ण पृथ्वी को प्रेम व दया से सराबोर कर रहा है। ईश्वर के हृदय से संपूर्ण पृथ्वी को प्रेम, दया, परमानंद व दिव्य शांति का आशीर्वाद मिलने दे। पृथ्वी पर सभी लोगों को भाईचारे, सामंजस्य व भलाई करने की इच्छा का आशीर्वाद मिलने दे। तथास्तु। अपने ब्रह्म चक्र द्वारा चमकीले प्रकाश से पृथ्वी को आशीर्वाद देते रहे और मुस्कुराते हुए करुणा की भावना पृथ्वी पे फैलाते रहे। ईश्वर के हृदय द्वारा सभी जीवों के हृदय दिव्य प्रेम व दया से भर जाए। सभी को परमानंद व दिव्य शांति से भर जाने दे। ईश्वर के हृदय द्वारा सभी जीवों के हृदय को दिव्य प्रेम व दया मिले। सभी को परमानंद व दिव्य शांति मिले। सामंजस्य, समझ व दूसरों की भलाई करने की इच्छा प्राप्त हो। तथास्तु। इस बार आशीर्वाद को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हृदय व ब्रह्म चक्र से एक साथ पृथ्वी को आशीर्वाद देंगे। कल्पना करें, ब्रह्म व हृदय चक्र से सुनहरा प्रकाश निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से ढक रहा है और उसे प्रेम व दया से परिपूर्ण कर रहा है। ईश्वर के हृदय से संपूर्ण पृथ्वी को प्रेम व दया का आशीर्वाद मिले। संपूर्ण पृथ्वी को परमानंद व दिव्य शांति का आशीर्वाद मिले। सभी लोगों का हृदय पृथ्वी पर सद्भावनाओं, भाईचारे व दूसरों की भलाई करने की इच्छा से परिपूर्ण हो। तथास्तु। पृथ्वी को हृदय व ब्रह्म चक्र द्वारा सुनहरे प्रकाश से आशीर्वाद देने जारी रखे। मुस्कुराते हुए पृथ्वी को दया व करुणा की भावना से परिपूर्ण करे। ईश्वर के हृदय से संपूर्ण पृथ्वी को दया, प्रेम व करुणा का आशीर्वाद मिलने दे और सभी के हृदय को परमानंद व दिव्य शांति से भर जाने दे। सभी प्राणियों के हृदय परमानंद व दिव्य शांति से भर जाए। सभी का हृदय सद्भावनाओं, सामंजस्य व दूसरों की भलाई करने की भावनाओं से भर जाए। तथास्तु। अब अपने सर के ऊपर चमकते हुए सितारे की कल्पना करें और साथ में मन ही मन ओम का उच्चारण करें। दो ओम के बीच में जो अंतराल है, इस पर ध्यान करें। साथ ही चमकता हुआ सितारा भी रहे।
आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे सामान्य चेतना में लौटे, जागृत अवस्था में आए और धीरे धीरे उंगलियों को हिलाइए। फिर से एक छोटे गेंद के आकार में पृथ्वी की कल्पना करें। अपने हाथों को छाती तक आशीर्वाद की मुद्रा में उठाए। दोनों हाथ के बीच लगभग 6 इंच की दूरी रखें। पृथ्वी को प्रेम, शक्ति व प्रकाश का आशीर्वाद दे। पृथ्वी को शांति, स्वास्थ्य व आध्यात्मिकता परिपूर्ण करे, ऐसे आशीर्वाद दे। अपने देश को एकता, शांति, प्रगति, संपन्नता व आध्यात्मिकता परिपूर्ण करे, ऐसे आशीर्वाद दे। समाज को शांति, प्रगति, संपन्नता एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद दे। इंस्टीट्यूट ऑफ इनर स्टडीज, वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन को प्रेम, शांति व प्रकाश का आशीर्वाद दे, जिससे कि उनके सभी योजनाएं जो विश्व के उत्थान के लिए हैं अति शीघ्र उचित रूप से सफल हो। उन सभी लोगों को आशीर्वाद दे जो आपके सहयोगी हैं। आपका घर, परिवार, मित्र और प्रियजनों को सामंजस्य, स्वास्थ्य, संपन्नता एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद दे। अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को आशीर्वाद के काम में व्यय करें। तब तक आशीर्वाद देते रहें जब तक आपको अपना शरीर सामान्य स्थिति में महसूस होने लगे। मन ही मन दोहराए, हे परमपिता, आपके दिव्य आशीर्वाद, सुरक्षा, दिव्य दिशा निर्देश, सहायता तथा ज्ञान के लिए धन्यवाद। हम आपका पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं। तथास्तु। मुस्कुराते हुए धीरे से आंख खोलिए। अपने चेहरे व सर को मलिए। लिवर व किडनी को कुछ क्षण के लिए थपथपाइए, जिससे कि अतिरिक्त एकत्रित ऊर्जा को दूर कर सके। अपने हाथों, भुजाओं, जांघों, पैरों और अन्य भाग को भी मल सकते हैं। उसके बाद वही व्यायाम दोहराए जो आपने ध्यान से पहले किया था। यह क्रिया आपके शरीर को बची हुई अतिरिक्त ऊर्जा से मुक्त करती है तथा प्राप्त ऊर्जा को शरीर में घुलने मिलने में सहायता करती है। प्रतिदिन किए जाने पर यह ध्यान आपको बेहतर शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। इस कैसेट में उपलब्ध सूचना मास्टर चोआ कॉक सुई द्वारा लिखी हुई पुस्तक द एंशिएंट साइंस एंड आर्ट ऑफ प्राणिक हीलिंग से ली गई है। मास्टर चोआ कॉक सुई प्राणिक हीलिंग पद्धति के शोधकर्ता है एवं सबसे वरिष्ठ उपचारक भी है। यह ध्यान मास्टर चोआ कॉक सुई एवं उन सभी को समर्पित है जो दूसरों के प्रति सद्भावना रखते हैं।